Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, in last session I completed your chapter, right? In today's session I am going to explain you about exercise. ये exercise में हम क्या पढ़ेंगे, okay? So kids, please open page number 258. Open किया? Now उसमें है name the following कि हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसके वन वर्ड में आंसर देने हैं, राइट? कोई भी चीज का अगर हमें एक्सप्लेनेशन दिया है उसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट? नंबर 1, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड। जब भी फ्यूल बर्न होता है तो वो कौन सी एनर्जी रिलीज करता है? कौन सी एनर्जी रिलीज करता है किड्स? हीट एनर्जी को रिलीज करता है, राइट? Then after that, okay, so kids, वहाँ पे सामने space दी गई है. You can write your answer over there. Okay, so write down heat energy. Now number 2, the energy of an object due to its position or movement. एक ऐसी एनर्जी जो पोजीशन और मूवमेंट के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बोला था मूविंग कार, तो वो कौन सी एनर्जी हुई किड्स? वो मैकेनिकल एनर्जी हुई, राइट? Then we are supposed to write down mechanical energy. Now number 3, sources of energy that cannot be replenished quickly. एक ऐसी sources of energy जिसको हम replenish quickly नहीं कर सकते, वो कौन सी एनर्जी होगी kids? Oh, so easy. Non-renewable source of energy जिसको हम easily replenish नहीं कर सकते, right? And we are supposed to write down non-renewable sources of energy. Clear? Now next number 4, the energy of air. Air के थ्रू कौन सी एनर्जी हमें मिलती है kids? It's a wind energy, right? Then we're supposed to write down over there wind energy. Clear? Now next number 5, last one. The heat energy generated from the core of the earth. Earth के core से heat energy जो जिसको generate करते हैं उसको कौन सी energy बोलेंगे kids? It's a geothermal energy, right? Then we're supposed to write down over there geothermal energy. Kids, don't write J, it's geothermal, geothermal energy, okay? So now same page पे नीचे है match the following, right? From there it is given column A and column B. Column A में है A solar energy, B wind energy, C geothermal energy, D hydroelectric energy, E light energy. और column B में है number 1 dams, number 2 heat inside the core of the earth, number 3 tube light, number 4 windmills, number 5 cooking food. चलो कॉलम ए में ए सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी के थ्रू वी कैन कुक फूड, राइट? तो ए को किसके सामने हमें मैच करना है? विद स्केल नंबर 5 के सामने, राइट? सो वी आर सपोज टू मैच ए विद नंबर 5. नाउ बी विंड एनर्जी. विंड एनर्जी से कौन सी चीज चलती है? सोचो किड्स. Yes, our answer is windmills. Wind energy से वो मूवमेंट करती है, right? And we are supposed to match B with number 4. Now C, geothermal energy. It is so easy. अभी है ना name the following. Geothermal energy से क्या होता है kids? Geothermal energy से मतलब वो जो क्या होता है कि heat inside the core of the earth. Earth के core से हम heat geothermal energy को generate करते हैं, right? Then we are supposed to match C with number 2. Done? Now next D, hydroelectric energy. Hydroelectric energy मतलब किसके थ्रू वो जनरेट होती है? हाइड्रो मतलब हाइड्रो एनर्जी किसके थ्रू जनरेट होती है? वाटर के थ्रू, राइट? तो यहाँ पे क्या है? डैम्स में डैम के अंदर वाटर होता है, राइट? तो वाटर से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी मिलती है, राइट? देन वी आर सपोज्ड टू मैच डी विथ नंबर 1. डन? Now last one E, light energy. Light energy as we all आप मुझे देख रहे हो just because यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स है, इसके थ्रू आप मुझे इजीली देख सकते हो, राइट? तो लाइट एनर्जी में क्या आएगा? ट्यूब लाइट्स. Okay, then we are supposed to match E with number 3. Done? Now open page number 259. Question number 2, write T for true and F for false. Here there are few statements are given. From that we have to write down T and F. If the statement is correct, then we are supposed to write down T, and if the statement is incorrect, then we are supposed to write down F. A, moving air can provide energy.
मूविंग एयर के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, राइट? होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ? किड्स टेल मी, ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ? करेक्ट हुआ, राइट? देन वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन टी, राइट डाउन टी। नाउ बी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम बहुत कम टाइम में उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। No, this is absolutely incorrect, right? Then we are supposed to write down F. हमें क्या लिखना होगा? F लिखना होगा। Now see, coal is used to produce electricity. Coal के थ्रू हम electricity को produce कर सकते हैं? Yes, मैंने last session में बोला था कि electricity mostly किसके थ्रू produce होती है? Electricity के थ्रू ही produce होती है, right? तो this statement is correct and we are supposed to write down T. Done? Now D. Sound energy is produced when an object vibrates. Sound energy तब भी प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो वाइब्रेट होता है। Yes, this statement is correct. कोई भी चीज को टच करने से, वाइब्रेट करने से उसमें साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो then our answer must be T, right? Write down T. Now last one E. Energy can be created and transformed. की ऐसी एनर्जी जिसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। यस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम उसको क्रिएट और ट्रांसफॉर्म दोनों नहीं कर सकते, राइट? देन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन F. राइट डाउन F. Done? So here we completed our true or false, right? Then question number 3, choose the correct answer. Kids, here there are 4 options are given below. From that we have to select only one correct option, okay? चलो A. The energy used to generate electricity through solar panels. कि ऐसी एनर्जी जिसको हम सोलर पैनल्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1 विंड एनर्जी, नंबर 2 सोलर एनर्जी, नंबर 3 हाइड्रो एनर्जी या नंबर 4 जियोथर्मल एनर्जी। बट नेचुरल सोलर पैनल्स के थ्रू हम सोलर एनर्जी को ही जनरेट कर सकते हैं, राइट? देन वी आर सपोज्ड टू टेक ऑन नंबर 2. टेक इट। नाउ नेक्स्ट बी, The heat energy generated from the core of the earth. जो core of the earth से हम एक एनर्जी को जनरेट करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 जियोथर्मल एनर्जी, नंबर 3 विंड एनर्जी या नंबर 4 वाटर एनर्जी। Yes, we can generate geothermal energy from the core of the earth, right? Then we are supposed to take on number 2. Done? Now see, which of the following can be replenished in a short period of time? इनमें से कौन सी चीज है जो रिप्लेनिश कर सकते हैं शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में? नंबर 1 विंड एनर्जी, नंबर 2 ऑयल, नंबर 3 कोल या नंबर 4 नेचुरल गैस। यस, हम विंड एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, राइट? देन वी आर सपोज्ड टू टेक ऑन नंबर 1. नाउ डी, Which of the following is solid fossil fuel? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो फॉसिल फ्यूल था बट वो सॉलिड वाली फॉसिल फ्यूल है? नंबर 1 विंड एनर्जी, नंबर 2 ऑयल, नंबर 3 कोल या नंबर 4 नेचुरल गैस। यस, विंड एनर्जी भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है, कोल। कोल इज द सॉलिड फॉसिल फ्यूल, राइट? वो फॉसिल फ्यूल है बट वो सॉलिड वाला फॉसिल फ्यूल है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने में बहुत सारी चीजों में उसकी हेल्प लेते हैं, राइट? So we are supposed to take on number 3. Done? Now last one E. LPG is produced from these fossil fuel. LPG इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है wind energy, number 2 crude oil, number 3 coal या number 4 natural gas. LPG किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है किड्स? LPG जो है वो किसके थ्रू? crude oil के थ्रू, right? तो we are supposed to take on number 2. Done? So kids, here we completed our choose the correct answer. Now let's begin answer the following question in 1 or 2 sentences. चलो listen it carefully. बहुत ही easy है. अगर समझ में आए तो you can write answers by yourself. Okay? Number 1. Name the 2 main types of sources of energy. Here we have to write down 2 main types of sources. कौन सी energy है? सोचो kids. There are 2 main types of sources of energy are कौन सी है kids?
One is renewable sources of energy and another one is non-renewable sources of energy, right? Now, number 2. What are the different renewable sources of energy? कितने टाइप्स की non-renewable sources of energy होती है? कितने टाइप्स होते हैं kids? The different renewable sources of energy are कौन से renewable source of energy kids? सोचो, एक तो solar energy, wind energy, hydro energy, and last one is geothermal energy, right? These are the different renewable sources of energy, right? आप एग्जाम में कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो. If suppose this question is asked by me, you can write any examples, okay? But वो एक renewable source of energy होना चाहिए. Clear? Now number 3. What are the disadvantages of non-renewable sources of energy? Non-renewable sources of energy के कौन से disadvantages हैं? Limited supplies of sources, oil spills caused by digging and transporting of crude oil, and air pollution caused by the burning of fossil fuels. ये वो oil spill होता है जब उसको निकालते टाइम पे या तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे भी उसके oil spill के चांसेस होते हैं. देन आफ्टर वो बर्न होता है तो उसमें से pollution निकलता है, राइट? तो air pollution के भी चांसेस होते हैं, राइट? So these are the disadvantages of non-renewable sources of energy. Done? Now number 4. Name 5 different forms of energy. Here we have to write down five different forms of energy, right? The 5 different forms of energy are number 1, heat energy, number 2, light energy, number 3, mechanical energy, number 4, sound energy, and last one, number 5, electrical energy, right? Now last one, question number 5. What is the law of conservation of energy? कि conservation law of energy क्या है? क्या है kids? मैंने क्या बोला था law कि हम कोई भी चीज को हम destroy भी कर सकते हैं या तो फिर हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं? destroy भी कर सकते हैं. और दूसरा क्या बोला था मैंने? सोचो, हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, राइट? दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी. According to the law of conservation of energy, energy can neither be destroyed nor created. It can only be transformed from one form to another. वो एक ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हैं हम उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. क्लियर? So this is the law of conservation. So kids, here we completed our answer the following questions in 1 or 2 sentences. Now let's begin question number 5. Answer the following questions. Number 1. Describe the renewable sources of energy. Here we have to describe some renewable sources of energy, okay? Renewable sources of energy can be replenished in a short period of time. Renewable source of energy एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड से उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, राइट? They are available in plenty and do not pollute the environment. वो हमें plenty मतलब बहुत सारी अमाउंट में मिल रही है, बट उसका बेनिफिट कौन सा है कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं कर रहा है, राइट? Number 1, solar energy. Sun's energy can be used to generate electricity. Number 2, wind energy. Wind energy is derived from the energy of moving air. Number 3, hydro energy. It is the energy of the water stored behind dams. Number 4, geothermal energy. It is the heat energy generated from core of the earth. So kids, are you understand all this? You understand all the renewable sources of energy? Done. Now question number 2. Describe the different forms of energy. ये तो renewable sources of energy थी. Here we have to describe some different forms of energy. Okay. The 5 different forms of energy are number 1, heat energy. The sun gives us heat energy that can be used to dry clothes. सन के थ्रू हमें हीट एनर्जी मिलती है और इसके थ्रू हम क्लोथ्स को ड्राई भी करते हैं, राइट? देन आफ्टर लाइट एनर्जी, द सन गिव्स आउट लाइट एनर्जी. दिस हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. ये सन हमें लाइट एनर्जी भी देता है जिसके थ्रू हम आजू बाजू हमारे सराउंडिंग में जो कोई भी चीज होती है उसको हम इजीली देख भी सकते हैं, राइट? देन आफ्टर नंबर 3, मैकेनिकल एनर्जी. The energy of an object due to its position or movement is called
मैकेनिकल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसकी मूवमेंट और पोजीशन के थ्रू हमें इजीली पता चल जाता है कि इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी और अ समवन एज, राइट? Then after number 4, sound energy. It is produced when a force causes an object to vibrate. Sound energy कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट में वाइब्रेट होता है, कांटेक्ट में आता है, उसके बाद ही साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड एनर्जी. Now last one, number 5, electrical energy. It can be used to run equipment such as fans, televisions and many other electrical items. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड रहेगी, राइट? तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज फैंस, ट्यूबलाइट्स, एसी. देन बहुत सारे एग्जांपल्स है, ब्लेंडर है, मिक्सचर है, रेफ्रिजरेटर है. तो कोई भी अप्लायंसेस हम इसका यूज नहीं कर सकते. इवन मोबाइल चार्जर न था तो શું થાય यूज नहीं कर सकते, राइट? इलेक्ट्रिसिटी के बिना. डन. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हियर वी हैव राइट डाउन, नोट लिखनी है कि कैसे फॉर्म चेंज होते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हमें ऐसा पता चलता है कि कोई एनर्जी है का तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? या तो फिर उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो हमें ट्रू और फॉल्स में क्या पता? क्रिएट बोला था, राइट? बट क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. डन. Then after solar panels use solar cells to transform the solar energy into electrical energy. Here I explain one example कि solar panels से हम solar cell को transform करके solar energy का use हम easily कर सकते हैं, right? Done. So here we completed answer in brief also. Here we completed our chapter number 5. Chapter number 5 हमारा यहीं पे खत्म होता है kids. I have shared a PDF with you. मैंने आपके साथ PDF शेयर की ना. प्लीज राइट इट विद गुड हैंड राइटिंग ताकि आपकी एग्जाम आए तो आपको रीड करने में बहुत ही इजी रहेगा, राइट? जो जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. वेरेवर यू नीड स्केल यूज इट. जहां पे लाइन स्किप करनी हो वहां पे स्किप भी करनी पड़ेगी. ओके? सो किड्स, नाउ from the next session I am going to introduce you chapter number 6, our environment. मैं नेक्स्ट सेशन में आपको चैप्टर नंबर 6 इंट्रोड्यूस करूंगी. एनवायरनमेंट में मेन अभी क्या चल रहा है? एयर पॉल्यूशन, राइट? उसका डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी. देन आफ्टर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से कॉज होता है. देन आफ्टर प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट भी कैसे करते हैं, उसको किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, राइट? देन आफ्टर वाटर पॉल्यूशन, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई अभी तो वाटर पॉल्यूशन किस तरह से कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन आफ्टर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन की लैंड पॉल्यूशन है उसका किस तरह से कॉज होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन आफ्टर प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मैटर है, राइट? देन आफ्टर नॉइज पॉल्यूशन भी हमारे आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. देन आफ्टर कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन का कॉज कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके किड्स, आई होप सो यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो, like it, and till next session kids, bye.